am टाइम नो good. सी. Yes, I कहाँ was थे आप? busy. London में थी. लंदन में थे. लंदन में क्या किया? खैर एक्टिंग तो कुछ था नहीं वहाँ पे, इसलिए मैंने सोचा कुछ नया करूँ. तो नया क्या किया? बता. बताओ प्लीज. Okay, it's called aesthetics. ओके. जैसे बोटॉक्स, फिलर, स्किन बूस्टर्स, लेकिन उसके अलावा भी हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जहाँ हम सबको 10-15 साल जवान कर सकते हैं. 10-15 साल और जवान कर सकते हैं. Yes, वाओ, दिस इज absolutely. लाइक अ बून टू एवरीवन. Yes. जो भी अच्छा जवान दिखना चाहता है. तो ये चीज है क्या एक्चुअली? Obviously इंग्लिश में हम इसे aesthetics बोलते हैं. ओके. जैसे it involves skin हाँ. and body. ओके. It includes microneedling, fat dissolving, mesotherapy, PRP, जहाँ पे आप अपना खुद blood अपना ले लेते हैं, निकालते हैं. उसका plasma बना Plasma देते हैं, you बनाते put it हैं, in the okay. centrifuge, and it's very, very good for the skin, for any part of the body, especially for acne and people who've got, pigmentations वगैरह. Okay. So मैंने सोचा कि चलो acting का काम तो है नहीं, तो इसलिए कुछ नया करें. And that's how I went and I got certified. Wow. So I'm a professional certified aesthetic practitioner. वैसे तो I've known this for about 10-15 years. लेकिन England का ये है कि British is like you have to get their certificate. Okay. आपको वहाँ से ही certified होना चाहिए. Okay, so you're certified now. Absolutely so certified. अब यहाँ आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम microneedling करेंगे. Okay. I always say microneedling is the mother of all aesthetics. Okay. जैसे आप जो भी skin boosters करते हैं, microneedling comes on the top. ठीक है. ये क्या करता है? Hyperpigmentations अगर हैं तो वो निकाल देता है. अगर fine lines है वो चले जाते हैं. Your skin starts glowing और जो भी problems acne का है वो भी चला जाता है. तो वो आज procedure हम आपके लिए कर रहे हैं. Wow, so I am getting a good procedure. तो ये कौन सी जगह है जहाँ आपने मुझे बुलाया है? Okay, now that's another surprise. This is the Sam's Salon. Okay. It's a beauty and spa. And Vabez, who is the owner of this place, a lovely personality. उनके साथ में collab कर रही हूँ. Okay. और क्योंकि यहाँ पे aesthetics practice नहीं होता है, so we're starting a branch of it, and हम लोग aesthetics यहाँ शुरू कर रहे हैं. So it's the Sam's Med and Spa. Wow. So Sam's Spa in Bandra. In Bandra, there are two branches. एक यहाँ है, एक one street ahead है, तो दो branches है Bandra West में on Dr. Ambedkar Road. So if anyone wants to come for treatment, they can come here. Yes, anyone wants to come for treatment, जिनको 15 साल जवान दिखना है तो जरूर आ सकते हैं यहाँ पर. This is not only for girls, it's for guys also. लेकिन मतलब जिनको भी अपने एज को थोड़ा सा कम करना है, skin glow करना है, you want to get young, men, women. It's not just for women, it's also for men. And this is not Botox. No, this is absolutely not Botox. This is a very, very natural procedure. जहाँ पे जैसे मैंने आपसे कहा था, it's the mother of all treatments. और there are 12 needles. एक derma pen है, जिसमें वो 12 needles है, और वो आपके face पे हम needles को rotate करते हैं on the derma pen. It takes about 30 minutes of the procedure. Okay. और फिर आपका face थोड़ा सा लाल हो जाता है, and then in 3 days time your skin starts glowing. Wow. So basically जो आपके जो blood circulation या जो भी चीजें अंदर जो है वो dead हो रही थी, dead cells हो रहे थे, उसे आप regenerate करते हैं. It goes into the epidermis, and if you go deep, it goes into the dermis as well. Okay. तो इसका मतलब है कि जो superficial है मतलब. It is superficial. और लेकिन क्या करता है? It basically activates the blood cells and the tissues in your face, and then what it does is वो collagen build करता है. क्योंकि collagen build करता है, the skin gets tighter, it glows, और जितने भी dead skins है वो निकल जाते हैं. Wow, so sounds amazing. तो हम therapy शुरू करें? तो Absolutely. थेरेपी होती कैसी है ये हम तो स्टेप बाय स्टेप तो दिखाते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे नमिंग क्रीम लगानी पड़ेगी बिकॉज इट्स अ पेन और नीडल्स हैं. 12 नीडल्स है उसमें. लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आपको दिखेगा भी नहीं. So don't worry about it. Okay, so पहले नमिंग क्रीम लगाएंगे, उसके बाद प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे. So let's get started. चलें? Sure, let's go.
फेस पे नमिंग क्रीम लगाएंगे ताकि उनको वो पिंस के सेंसेशन ना हो. तो we'll just get your, all right. Is it okay? Yes. ज़्यादा टाइट तो नहीं है? नहीं. You comfortable? Yes. Okay. तो नमिंग क्रीम लगाने से पहले we'll have to clean, तो उसे पूरा निकाल देते हैं हम. स्पेशली अगर क्लाइंट बाहर से आते हैं तो एनी पोल्यूशन ऑन द फेस, एनी काइंड ऑफ रेजिड्यू ऑन द फेस, वो सब निकाल देते हैं हम. एंड देन वी अप्लाई द नमिंग क्रीम. जस्ट लुक अप फॉर मी प्लीज. थैंक यू. हम लोग नेक का भी प्रोसीजर करते हैं. द रीज़न बीइंग, लोग अपने फेस पे बहुत ध्यान देते हैं, लेकिन नेक जो वो एजिंग प्रोसेस होता है, लोग फेस पे यंग दिखते हैं लेकिन नेक एज दिखा देता है. सो वी डू इट टुगेदर. ऑलराइट. अब इसके बाद अब हम स्पैचुला से नमिंग क्रीम लगा देते हैं ऑन द फेस. ये नमिंग क्रीम से स्किन नम हो जाता है और क्लाइंट को वो सेंसेशन नहीं होता नीडल का, क्योंकि हम लोग नीडल्स को एपिडर्मिस तक प्रोसीजर करते हैं, तो क्लाइंट को वो पेन नहीं आना चाहिए. वी नीड टू हैव द पेशेंट, द क्लाइंट एज रिलैक्स्ड एज पॉसिबल. हम पूरे फेस और नेक को कर रहे हैं. माइक्रो नीडलिंग बॉडी के हर जगह पे हो सकता है. अगर आपका कोई सर्जिकल स्कार्स हो, जैसे अगर किसी ने कोई ऑपरेशन किया है, कोई सर्जरी किया है, तो उसमें अगर स्कार्स है बॉडी के हर जगह पे, हम माइक्रो नीडलिंग के प्रोसीजर से उसे निकाल सकते हैं. लेकिन आज हम सिर्फ फेस और नेक कर रहे हैं. ये नमिंग क्रीम कभी भी आँखों में नहीं जाना चाहिए, मुंह में नहीं जाना चाहिए, because it can get dangerous for the client. थिक लेयर लगाना पड़ता है ताकि उसका असर जल्दी हो जाए. टेप लगा देंगे ताकि वो नमिंग जल्दी हो जाए और उनको 20 से 30 मिनट तक रुकना पड़ेगा ताकि वो नमिंग क्रीम का असर हो. आपने कोई प्रोसीजर अपने नाक पे तो नहीं किया है? अगर किसी क्लाइंट ने नोज सर्जरी किया हो या कोई भी ऐसा कुछ किया हो नोज पे, तो हम नोज पे नहीं करते. जैसे कि आप देख सकते हैं पूरे फेस पे हम कर रहे हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. We're done. अब मैं इसको कवर करूंगी. Okay. इसे हम बहुत स्लाइट लगा देते हैं. टेप की वजह बेसिकली ये है कि it stops from the air on it. Sorry. Look up please. up नहीं, अपना गर्दन ऊपर करो please.
Okay. There. तो हमने पूरे फेस को इस टेप से कवर कर दिया. अब वो रेस्ट करेगी. जैसे ही वो असर नमी का होगा फिर हम लोग प्रोसीजर शुरू करेंगे. ठीक है. बेसिकली ये जो सारे ये यूके से लेकर आई हूँ एंड दे आर ऑल यूके बेस्ड प्रोडक्ट्स. स्किन बूस्टर्स है, इंजेक्शंस है, विटामिन्स है और फैट डिसॉल्विंग है. तो ये जो प्रोडक्ट्स हर एक का मैं आपको बता देती हूँ कि हर एक प्रोडक्ट क्या करता है. इसे लूमी आइज कहते हैं. ये अंडर आइज के लिए बहुत ही इफेक्टिव है. इंडिया में ज़्यादातर हम लोगों का वो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे अंडर आइज डार्कनेस होता है. तो ये फर्स्ट सेशन में ही उसका असर दिखा देता है. क्योंकि इसमें B5 और विटामिन C है. लेकिन बेस्ड ऑन कितना वो डार्कनेस है तो उस हिसाब से हमको मिनिमम 3 सेशंस करना पड़ता है. तो ये है लूमी आइज और इस कंपनी का नाम है लूमी और इनके कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे फिलर्स है, स्किन बूस्टर्स है, अंडर आइज का है. तो ये है लूमी आइज और इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो स्किन को डैमेज कर सके. बहुत ही सेफ है और इसका सोल्यूशन इतना थिन है. इट्स सो स्लाइटली थिन एंड डाइल्यूटेड कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है फेस पे. ठीक है. इट्स एब्सोल्युटली सेफ. ये इंजेक्ट होता है अंडर आइज पे. हम एपिडर्मिस पे इंजेक्ट करते हैं, सुपरफिशियली हम इंजेक्ट करते हैं और क्लाइंट कैन स्टार्ट वर्किंग नेक्स्ट डे. 24 घंटे के लिए कोई मेकअप नहीं, कुछ नहीं, फेस को नहीं धोते, लेकिन 24 घंटे के बाद नॉर्मल अपने जो भी करना है वो कर सकते हैं. अब है ये इंजेक्शंस है जो बायोटीन एंड बिपेक्टा. ये बेसिकली हेयर, नेल्स एंड आईब्रोज एंड आईलैशेस के लिए हैं. ये अगर कोई भी बंदा जिसका एलोपेशिया हो, मतलब पैचेस, बोल्ड पैचेस हो, जो ऑन डिफरेंट बेसिस पे प्रॉब्लम हो सकता है. या तो अगर बॉल्डनेस हो लेकिन हेयर फॉलिकल्स एक्टिव होना चाहिए. अगर हेयर फॉलिकल अगर जेनेटिक है और वहाँ पे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव नहीं है तो ये काम नहीं करेगा, कुछ भी काम नहीं करेगा. यू हैव टू गो फॉर हेयर ट्रांसप्लांट. लेकिन अगर हेयर फॉलिकल्स एक्टिव है और बॉल्डनेस है तो इस इंजेक्शन से एब्सोल्युटली हेयर वापस आ जाता है, बेबी हेयर ग्रोथ हो जाता है, नेल्स बहुत ही हेल्थी हो जाते हैं, लैशेस ग्रो होना शुरू होते हैं, आईब्रोज ग्रो होना शुरू होते हैं और स्ट्रैंड्स बहुत ही थिक घने होते हैं. और स्पीड ऑफ द हेयर ग्रोथ वो बहुत जल्दी हो जाता है. जैसे अगर आपका हेयर महीने में 1 इंच बढ़ता है, इससे 2 इंच बढ़ता है. मतलब इसका स्पीड बहुत ही फास्ट है. इसका है कि यू हैव टू हैव 6 वीक्स 6 डेज लाइक एन एंटीबायोटिक है. अगर आपने उसको मिस कर दिया तो आपको पहले से शुरू करना पड़ेगा. सो यू हैव 12 इंजेक्शंस एवरी 6 डेज फॉर 6 वीक्स. फिर 1 महीने का ब्रेक, फिर उसके बाद वापस. तो अ कोर्स इज सपोज्ड टू बी डन टू गेट द रिजल्ट्स. पहले कोर्स में ही रिजल्ट आ जाता है. तो ये रहा बायोटीन एंड बिपेक्टा. ये हम जर्मन से मंगवाते हैं. और ये है मीजोथेरेपी. अब मीजोथेरेपी का बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स हैं. हेयर के लिए भी है, स्किन के लिए भी है. ये आज स्किन के लिए है जो मैं अपने क्लाइंट पे प्रोसीजर कर रही हूँ. हम लोग एकता पे ये प्रोसीजर करेंगे जहाँ पे हम लोग माइक्रो नीडलिंग और इसके साथ कर रहे हैं ऑन द फेस. अगर आप देख सकते हैं तो इसमें लिखा हुआ है फर्मिंग, मतलब स्किन को फर्म कर देता है, उसको टाइट कर देता है. जितने भी मतलब हाइपर पिगमेंटेशंस हो उसे निकाल देता है, स्किन को ग्लो कर देता है. सो दिस इज मीजोथेरेपी फॉर द स्किन. इट्स कॉल्ड द स्किन बूस्टर. हम इसे स्किन बूस्टर कहते हैं. इसे भी हमने यूके से मंगवाया है.
और ये है उसका, दिस इज हाउ इट लुक्स, ऐसा दिखता है, जो बॉक्स में है ऐसा दिखता है। इसे हम कहते हैं मीजोथेरेपी फॉर द स्किन। ये हेयर के लिए भी है, जैसे मैंने आपसे कहा था विद इंजेक्शन, अगर हम उसे कंबाइन करते हैं हेयर मीजो के साथ, उसका स्पीड बढ़ जाता है, इट बिकम्स फास्टर। अगर 1 महीने में बाल बढ़ जाता है या बॉल्डनेस का या एलोपेशिया का, इसे 15 दिन में हो जाएगा, बिकॉज इट्स एक्टिवेटिंग इट फास्टर। हम लोग बाल पे विथ दिस हम लोग इंजेक्ट करते हैं एंड वी यूज इट ऑन द हेयर लाइन पे या बॉल्डनेस पे, उस इफेक्टेड जगह पे करते हैं। सो वी हैव द कंपनी which is for meso, and so it's meso skin and hair. अब ये है लेमन बॉटल। ये बहुत ही डिमांड में है आजकल। मुझे नहीं पता अगर इंडिया में ये है या नहीं है, बट दिस इज अ वेरी वेरी इफेक्टिव ब्रांड। लेमन बॉटल कंपनी का नाम है। ये है स्किन बूस्टर, जैसे मीजो के लिए इसे भी हम इंजेक्ट करते हैं एंड इट टेक्स अवे पिगमेंटेशंस, फाइन लाइंस, फर्मनेस ऑफ द स्किन, ग्लो करता है। सो दिस इज व्हाट वी यूज। लेमन बॉटल का फैट डिजॉल्विंग भी होता है, जो आज ऑब्वियसली नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। लेमन बॉटल हैज फैट डिजॉल्विंग, जैसे अगर आपके स्टबन फैट पेट में है या आर्म्स पे है या थाइस पे है या लव हैंडल्स है या फ्लैंक्स है, जो भी है, अगर हम इंजेक्ट करते हैं तो वो निकल जाता है। इट बेसिकली ब्रेक्स डाउन द स्टबर्न फैट। हम स्टबर्न फैट अगर जितना भी जिम में भी जाएंगे और कहेंगे नहीं जिम से निकल जाएगा, नो इट डजंट। यू हैव टू गो थ्रू अ स्पेशल ट्रीटमेंट और अ डाइट इन ऑर्डर टू गेट द फैट ऑफ। तो ये लेमन बॉटल एक बहुत ही इन डिमांड है, जो हम लोग इंजेक्ट करते हैं और वो फैट डिजोल्व हो जाता है। आपको बहुत सारा पानी पीना पड़ता है और आपके डाइट को फॉर अ वीक थोड़ा कम करना पड़ता है। इट्स वेरी इफेक्टिव। ये रहा लेमन बॉटल। अब आते हैं लास्टली ऑन दिस, इसे कहते हैं हम रेव्स प्रो 32। ये फिलर है, लेकिन नॉट द काइंड ऑफ फिलर जहाँ पे थिकनेस होता है। फिलर्स आर नॉट गुड, जैसे जूवीडर्म वगैरह, आई डोंट वांट टू नेम द प्रोडक्ट्स, लेकिन हर फिलर अच्छा नहीं होता है। ये बहुत ही डाइल्यूटेड फिलर है, मतलब ये डिसॉल्व हो जाता है स्किन में। इट डज द जॉब ऑफ अ प्रोफाइलो। अब प्रोफाइलो जो नहीं है, तो इसलिए मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। दिस इज मोर इफेक्टिव देन प्रोफाइलो। ये भी स्किन को टाइट करता है, प्लम्प कर देता है स्किन को, कोलेजन बिल्ड कर देता है स्किन पे, और स्किन स्टार्ट्स लुकिंग यंग। अब एक पते की बात, व्हेन एनीबडी, जो भी 25 साल के बाद, हम सब कोलेजन लूज कर देते हैं अपने फेस पे, इलास्टिसिटी बढ़ जाता है, एज होता है फ्रॉम द एज ऑफ 25। तो अगर हम 25 से शुरू करें ऐसे प्रोसीजर्स को, तो वी आर डिफाइंग एज, हमारा एज प्रोलॉन्ग हो जाता है। अगर आप 40 साल के होंगे तो यू विल लुक 30। क्यों? क्योंकि वो इस एज को डिफाई कर देता है, कोलेजन बिल्ड कर देता है, इट स्टॉप्स यू फ्रॉम एजिंग क्विकली। तो ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही इफेक्टिव है, और इसे अगर आप रेगुलरली यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज कर दो, हाँ चलो हो गया, अब नहीं करना है, नो, आपको ये प्रोसीजर्स रेगुलरली करना पड़ता है। हर प्रोडक्ट का कोई ना कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनके प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन यू हैव टू बी रेगुलर। तो ये रहा सारे प्रोडक्ट्स के explanations. Now, lastly, which I forgot, this is the mother of all procedures. इसे हम कहते हैं माइक्रो नीडलिंग। ये माइक्रो नीडलिंग, इसका जो नीडल है, अभी खैर नहीं है, this is micro needling which I'm going to be doing on our client Ekta. This is the mother of all procedures. ये hyperpigmentations को निकाल देता है, फाइन लाइंस को निकाल देता है। अगर जो भी सर्जिकल स्कार्स हो, जैसे मैंने बोला था, एनी सर्जिकल स्कार्स हो फेस पे, उसे डिमिनिश कर देता है, कोलेजन बिल्ड कर देता है। क्यों? क्योंकि ट्रॉमेटाइज करता है स्किन को, आपका स्किन लाल हो जाएगा। सो इट गोज इनटू द एपिडर्मिस। 12 नीडल्स है उसमें, जो आप फेस पे पूरा प्रोसीजर करते हैं, फेस एंड नेक। ये प्रोसीजर बॉडी के किसी भी जगह पे आप कर सकते हैं, हैंड्स, फेस, लेग्स, स्टमक,
एनीवेयर, नेक, जो भी, अगर आपका कोई कभी कभी किसी का एक पैच है हाथ पे, दे डोंट लाइक इट, तो हम उसे माइक्रो नीडलिंग से निकाल देते हैं. सर्जन्स स्वेयर बाय दिस. मतलब आप जिस सर्जन के पास जाओ वो बोलेंगे आपको माइक्रो नीडलिंग ही करो. इट्स द सेफेस्ट एंड इट्स द मदर ऑफ ऑल प्रोसीजर्स. एंड आयरॉनिकली सबसे सस्ता प्रोसीजर है. सो इट्स द मोस्ट इफेक्टिव but the cheapest. So that's for microneedling. There's one last that I need to say about the hair extensions. Please take this as well. This is very. अब ये procedure aesthetics नहीं है, obviously it's hair extensions. आज के ज़माने में हम सब हमको बाल अच्छे चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, स्पेशली जो लोग सेलिब्रिटीज होते हैं और कैमरा फेस करते हैं, दे लाइक टू हैव देयर हेयर विद वॉल्यूम. उस ज़माने में हम लोग क्लिप ऑन्स लगाते थे या तो टेप्स करते थे या अलग अलग एक्सटेंशंस करते थे. अब ये जो एक्सटेंशन है इसे हम न्यू जनरेशन एक्सटेंशंस और कोम लाइन एक्सटेंशंस कहते हैं. ये एक्सटेंशंस इतने छोटे हैं, इनके कैप्सूल्स इतना छोटा है कि आपको लगेगा भी नहीं सर पे, यू डोंट फील एनीथिंग. इतना लाइट है और इनविजिबल है. तो एनी वन हु पुट्स इट, और 4 से 6 महीने तक इट लास्ट्स, निकलता ही नहीं, और उसी बाल को आप 1 साल तक यूज कर सकते हैं अगर आप यू टेक गुड केयर ऑफ योर हेयर. वो एक है. और दूसरा है कोम लाइन. यहाँ पे अगर आपने बोल्डनेस देखते हैं, वो बंदा यहाँ पे इंडिया में भी, यू नो, वी हैव एलोपेशिया, बोल्डनेस, स्कैंटी हेयर, लैक ऑफ, यू नो, हेयर, वो जो उनका स्ट्रैंड्स बहुत थिन होते हैं. ये इस प्रोसीजर से जो स्ट्रैंड्स ऑफ हेयर है, आपके बाल के स्ट्रैंड्स पे स्ट्रैंड्स ही स्टिक हो जाते हैं, उसे हम कोम लाइन प्रोसीजर कहते हैं, जो सबसे नया है और ऑस्ट्रेलिया का है. और इसको आप, यू हैव टू बी अ मेंबर ऑफ इट इन ऑर्डर टू डू इट, वरना ये आपको सू करेंगे अगर किसी को पता चल गया कि आप लोग इनके प्रोसीजर्स इनके परमिशन के बिना किया है, दे विल सू यू. सो ये कोम लाइन है. और जिन लोगों को उनके बाल को वॉल्यूम देना है और बोल्डनेस है, जगह नहीं है रखने के लिए, सो दिस इज व्हाट वी यूज फॉर पीपल हु हैव स्कैंटी हेयर, बोल्ड हेयर, एंड दे वांट हाइलाइट्स एंड लोलाइट्स. थैंक यू. ने भी बात नहीं की यार. एसी थोड़ी देर बंद कर दो. Whom I thought maybe they get stuffy that. खड़े थे बेचारे. सब आंखें तो एक ही जगह पे जा सकती. अब हम लोग 20 मिनट के बाद इनका जो नमनेस है इसको साफ कर देंगे पूरे फेस को. अब फेस पूरा साफ होना चाहिए और उसके बाद उसको सैनिटाइज करके प्रोसीजर को हम शुरू कर देते हैं. I can feel it numb now. पेन को, जो इसके 12 पिन्स है, इसे हम यूज़ करते हैं. यहाँ पे इसका लेवल्स होते हैं और हम लास्ट लेवल पर करते हैं क्योंकि इनके यहाँ पे पिगमेंटेशंस है और हमें ऐसा अचीव करना है कि उनके पिगमेंटेशंस भी निकल जाए, जितने भी दाग है वहाँ पे. सो वी हैव दैट आउट और उनकी स्किन को ग्लो करना है. साथ यूज़ करेंगे बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इफ़ेक्टिव प्रोडक्ट जो हम यूज़ करते हैं. फर्मनेस भी होगा, ग्लो भी होगा और ब्राइटनेस होगा एंड पिगमेंटेशन निकल जाएगा. हम इसे सिरिंज में डालते हैं, हम फेस पे लगा देते हैं.
अब इसके लेवल्स डेप्थ्स भी होते हैं. वी स्टार्ट विथ 0.5 ताकि देखेंगे कि उनको दर्द ना हो. अब यहाँ फोरहेड पे क्योंकि बोन है तो हम डेप्थ को ज़्यादा नहीं करते हैं. You okay? जब हम ये प्रोसीजर करते हैं तो उनको वो बर्निंग सेंसेशन और टाइटनेस लगेगा क्योंकि हम स्किन को बेसिकली ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं और 12 नीडल्स इस स्किन में जा रहा है जो कोलेजन बिल्ड करता है. You okay? As you see, स्किन लाल हो रहा है क्योंकि स्किन को ट्रॉमेटाइज कर रहे हैं हम. ये सारे 12 नीडल्स स्किन में जा रहे हैं और कोलेजन बिल्ड कर रहा है. जहाँ पे पिगमेंटेशंस होते हैं हम उस पर ज़्यादा काम करते हैं. You okay? हमने जो आज सेशन किया उसे माइक्रोनीडलिंग सेशन कहते हैं, जिसमें पहले मेरा जो फेस था उसके ऊपर नमिंग क्रीम लगाई थी ताकि मेरा जो स्किन है वो नम हो जाए. उसके बाद जो छोटे छोटे नीडल्स वाला जो नीडल माइक्रो नीडल्स कहते हैं वो नीडलिंग करके उसके साथ सॉल्यूशन डाला गया. दैट वाज मीसो सॉल्यूशन, जिसकी वजह से मेरा अभी जो स्किन है वो थोड़ा नमनेस से वापस आ रहा है. तो जैसे एनेस्थीसिया के बाद जैसे होश में आता है वैसे मेरा स्किन अभी होश में आ रहा है. बट आई कैन फील द टाइटनेस, आई कैन फील इट्स प्रिवेंटिंग, लाइक जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी वहाँ पर सोल्यूशन लगा हुआ है. सो इट्स गोइंग टू इफेक्ट इट एंड इट्स गोइंग टू बी गिविंग मी अ लाइक नाइस लुक. तो अगर नेक्स्ट टाइम जब देखोगे तब शायद मैं और थोड़ी छोटी लगूंगी. मैम, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड क्या कहना चाहिए आज के सेशन के बारे में. आज का सेशन जैसे एकता ने कहा, इट्स फॉर माइक्रो नीडलिंग, मीज़ो के साथ है. 12 नीडल्स है जिसे हम फेस को ट्रॉमेटाइज करते हैं, एपिडर्मिस पे जाता है और स्कार्स, हाइपरपिगमेंटेशन, कोलेजन बिल्डिंग और स्किन का ब्राइटनिंग हो जाता है. तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज क्लाइंट लाइक एकता एनी व्हिच वेज, इट्स अ प्लेजर टू डू इट फॉर हर. जैसे ही उसने कहा आप जब अगली बार देखेंगे योर स्किन विल बी ग्लोइंग और वो छुट्टी जलेगी. ऑल्सो मैम, बिग बॉस इज गोइंग ऑन, क्या प्लान्स है? अगर कोई वाइल्ड कार्ड जाने का ऐसा कोई प्लान है, अगर कुछ शेयर करना चाहे या फिर कुछ ऑफर आया हो? और आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है अगर शेयर करना है? फेवरेट कंटेस्टेंट तो है नहीं, आई ओनली लव सलमान इन इट, सॉरी. बट मैं अपने एस्थेटिक्स लेके अंदर जाके सबको ट्रीट करूँगी. बट अगर बिग बॉस का चांस मिले तो नथिंग लाइक इट एंड आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. फॉर इयर्स आई बीन वांटिंग टू डू इट, लेकिन देखते हैं, किस्मत की बात है, लंदन से यहाँ आए हैं, देखते हैं सलमान कंसिडर करेंगे या नहीं. और क्या क्या प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, क्योंकि आपने बहुत सारे टीवी शोज़ किए हैं, क्या आगे हमें देखने मिलेंगे आपके टीवी शोज़? और क्या प्लान्स है, क्या फिल्म है या फिर अगर कुछ ऐसा है? कोशिश कर रहे हैं. आई मीन कई प्रोजेक्ट्स लाइन अप है, उनसे बातचीत हो रही है. और रही बात म्यूजिक वीडियो की, हम लोग एक और म्यूजिक वीडियो कर रहे हैं जो वो भी बेस्ड ऑन रैप है, लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, ह्यूमैनिटी बेस्ड पे हैं. और देखते हैं वो भी टेक ऑफ हो जाएगा. एंड हम तो इंडस्ट्री में पैदा हुए हैं, इंडस्ट्री में ही मर जाएंगे. और मरते दम तक हम इंडस्ट्री के अंदर कवर के अंदर भी अगर जाएंगे तो उससे पहले हमको एक्टिंग करनी है. सो इट्स अ पैशन. और हम लोग अगर एक केन भी हाथ में रहेंगे ना मूवी तो जाएंगे, हमको एक्टिंग करनी है. सो यस, आई लव एक्टिंग एंड आई एम वेटिंग फॉर. अगर कोई भी प्रोजेक्ट आ जाए हमारे बॉलीवुड इंडस्ट्री में, मैं खुशी एक्सेप्ट करूँगा. क्या मैम, आपके क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं?
प्रोजेक्ट एक जो इंडो चाइनीज एक प्रोजेक्ट है जो अभी फिलहाल सोनी लिव पे शायद बात चल रही है, वो एक बार रिलीज हो जाएगा, देन आई विल बी एबल टू स्पीक अबाउट इट। बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है, सोशल मैसेज वाला है, सो आई एम वेटिंग फॉर दैट। और 2-3 वेब सीरीज़ की बात चल रही है, जो स्क्रिप्टिंग चल रही है उस पर काम चल रहा है इस वक्त। स्क्रिप्टिंग जैसे ही खत्म होगी वैसे आपको पता चल जाएगा। कोई प्रोजेक्ट के लिए आप दोनों को कोलैबोरेट करते हुए देख सकते हैं हम लोग? फिलहाल तो हमने एस्थेटिक्स के लिए कोलैबोरेट किया हुआ है। देखते हैं, एक्टिंग का भी हो सकता है, प्रोजेक्ट भी हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, Nothing is क्यों नहीं, क्यों नहीं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल के अंदर भी आई एम पॉसिबल है। Absolutely, and that's what Napoleon said. यस थैंक्स सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और बारिश के बारे में क्या कहेंगे? बारिश हो रही है। I love बरसात rainy का मौसम, मुंबई की बात- Mumbai without the rain, the monsoon is nothing, believe me. मैं लंदन से खास करके बरसात के मौसम में आई हूँ बिकॉज आई वांट टू गेट वेट इन द रेन। भीग जाती हूँ, लोग मुझे देखते हैं यार ये और पागल हो गए, क्यों बरसात में भीग रही है, जब भीगते हुए आप जा लोग रही हैं। छाता पकड़ने पर। नथिंग लाइक मुंबई रेन्स, आई लव मुंबई रेन्स। मुंबई की जो बारिश है उसमें मतलब हम लोग पॉजिटिव भी ढूंढते हैं और कई चीज़ें नेगेटिव भी होती हैं। कई बार पेड़ गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं पॉट होल्स इतने हैं कि कीचड़ बन जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, बट एक बहाना मिल जाता है कहीं पे लेट पहुंचने के लिए, ट्रैफिक मुंबई का। भीग के आते हैं। यस यू कैन। अब तो बारिश इतनी अच्छी हो गई है, मौसम इतना अच्छा हो गया है कि अब घूमने का भी बहुत अच्छा लगेगा। ये चांस हमें लंदन में नहीं मिलता था, इसीलिए यहाँ पे हम लोग ब्लेस्ड हो Yes. इस जगह पे। हम जहाँ पे एक्चुअली ब्लेस्ड हैं कि हमारे पास जो ऋतु है सारे, उसमें बारिश की ऋतु भी है, ठंडी भी है, गर्मी भी है, सारी ऋतुएं हमारे पास है, तो हम एक्चुअली ब्लेस्ड हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।